श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मनीष तिवारी जी। Very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I was compelled to invoke Rule 72(2) of the Rules of Procedure for the Conduct of Business in the Lok Sabha because there is no rule which pertains to seeking a clarification with regard to the constitutionality of a proposed legislation. Mr. Speaker, sir, if you would take the Constitution of India, Article 246, Schedule 7, List 1, 2, and 3 into consideration, you would find that in List 1, there are 97 entries. In List 2, there are 47 entries. None of these entries pertain to the subject of disaster management. There are 2 entries in the state list, Entry 1 and Entry 6, which pertain to public order and which pertain to public health, which can be invoked by state governments in order to enact state disaster management legislations. It's quite possible that the government may have drawn power from Entry 23 and 29 of the concurrent list when they proposed this amendment legislation, or when even the original legislation was passed by this House in the December of 2005. My submission, Madam Chairperson, is that the government needs to amend the concurrent list and have a proper entry which covers the subject of disaster management in toto. And the reason why I say this is that when a disaster takes place, अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है, कुदरती हो या किसी मानवीय कारण से हो, तो उसके जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यूजुअली लोकल अथॉरिटीज होती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, ये क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, एग्रीवेटेड नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए हैं, कि जो भी कानून इसके लिए बने, उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, उसकी लेजिस्लेटिव पावर ठीक तरह से डिफाइंड हो। क्योंकि जब डिराइव्ड लेजिस्लेटिव पावर होती है, आप किसी ऐसी एंट्री से लेजिस्लेटिव पावर लेने की कोशिश करते हैं, that legislation may not stand the test of constitutionality. That is my first point. Madam, I have 2 more points to make which are very important. The second reason why I am opposing this bill is this legislation, like many legislations introduced by this government, suffers from the malady of excessive delegation. That is, the rule-making power which has been given to the central government encroaches upon the domain of the state government squarely. And I have one last point, Madam Chairperson. This is an important constitutional point, because this House is a creature of the Constitution. And whatever laws that we make have to be in accordance with those constitutional provisions. And that is why I am making this point. The third point which I seek to make, Madam Chairperson, is that there is... मैं आग्रह कर रही हूँ, बिल पर चर्चा होगी तब विस्तार से बात करेंगे। मैडम, मैं बिल पे चर्चा कर ही नहीं रहा, मैं तो आपकी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे चर्चा कर रहा हूँ। लेजिस्लेटिव पावर कहां से डिराइव कर रही है सरकार इस संशोधित बिल को लाने के लिए, मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं, मेरिट्स पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं। There is a clause 23 in this bill which introduces section 41A. It says that every state government will have the powers to allow its municipal corporations to make disaster management plans, except the National Capital Territory of Delhi and Chandigarh. Why? This is a direct assault
on federalism and goes against the basic principles of federalism. So therefore, I oppose this bill, and I would demand that the government gives a clarification as to where does it draw the constitutional provisions, powers to enact it. Sir, Madam, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Disaster Management Amendment Bill 2024. It's good that the Home Minister at least has not given a Hindi name to the law. Otherwise, he is giving Hindi names to every law. He has saved us. Sanskrit or Sanskrit? Of course, we are Bengalis. We don't understand Hindi. So, sir, ma'am, my point is that this bill has become very relevant in the context of the tragedy at Wayanad in Kerala. And we find that already due to multiplicity of authority, there is a conflict between the Kerala Chief Minister and the Union Minister. Kerala Chief Minister said that he did not receive due warning. The Union government is saying that धन्यवाद दादा, धन्यवाद. My objection, it has been stated in my statement, is that this creates again more authorities. It's creating a urban disaster management authority. It's also creating a state disaster response force by the state government. Whole problem is multiplicity of authority will give rise to confusion and bureaucratic muddles. At the time of natural disaster, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ इसी विषय पर बिल पर भी चर्चा होगी, उसकी विस्तार से बात कर सकते हैं. आप भी सवाल पूछिए, आज मुझे थोड़ा मौका दिए. दादा प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए. I oppose that so many new authorities are being created, and I do not want this bureaucratic muddle to hamper relief and rescue work at the time of धन्यवाद धन्यवाद माननीय मंत्री जी. मैडम साहब महोदय, बहुत ही जवाब नहीं दे रहे हैं महोदय. आपको कुछ हो बोलना तो बोले, तो बिल के टाइम बोल लेना. ठीक जी जी, उससे बोलेंगे, लेकिन थोड़ा उन्होंने जैसा नियम की चर्चा किए हैं उस पर हम स्पष्ट रूप से उनको कहना चाहेंगे कि मूल आपदा प्रबंधन अधिनियम जो मनीष तिवारी जी बता रहे थे, 2005 के समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची की सूची 3री की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, और यह 19 वर्षों से अधिक समय से यह संवैधानिकता की कसौटी पर खड़ा उतरा है महोदय. इसलिए कहीं भी ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने उसी को आगे मैं प्रस्तावित आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 संविधान के मूल स्रोत यानी 7वीं अनुसूची की 3 की प्रविष्टि 23 जिसकी चर्चा कर रहे थे के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया है में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं करता है महोदय है. और महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो माननीय शौकत राय साहब ने कहा है और मनीष जी ने भी, कहीं भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं है. आपदा का प्रबंधन प्रथम दायित्व राज्य का बनता है, और जो इसमें विषय लाए गए हैं उस बना रहे कि आपदा का प्रबंधन ठीक से हो, और आपदा का प्रबंधन ठीक से हो, और बनाने का कारण भी है कि महोदय 2011 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी. बनाई क्यों गई थी कि इस जो आपदा प्रबंधन में जो चिंताएं आ रही थी और जो उसकी सीमाएं थी उसको ध्यान में रखते हुए 11 में बनी टास्क फोर्स ने 2013 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की. रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सरकार ने सभी राज्यों को यूटी समेत तथा विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों को एवं
आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विशेषज्ञों को परामर्श के लिए भेजा गया और सबके जब परामर्श आए हैं, विचार आए हैं और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश करने का निर्णय लिया गया है महोदय। और जो बातें और होगी वह चर्चा और पारण के दौरान विशेष रूप से एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। क्यों लाया गया, क्यों जरूरी है, उनका कोई शंका होगा उसका भी समाधान होगा, अगर कुछ उचित उनका सुझाव होगा उस पर भी विचार किया जाएगा। प्रश्न है कि विधेयक को आपके संज्ञान के लिए, हाउस के संज्ञान के लिए, एंट्री 23 जिसका जिक्र करते हैं कि जिसके तहत ये संशोधित विधेयक लाया गया है, वो क्या कहता है? सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कहां लिखा है? इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कहां लिखा है? आपकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कहां है ये बिल लाने के लिए? भाई सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस, रोजगार और बेरोजगार, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कहां से आ गया? सोशल सिक्योरिटी तो डिजास्टर मैनेजमेंट, सर सोशल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट। माननीय मनीष जी, इस संशोधक विधेयक को ठीक से पढ़ें, तब उसका भाव और आगे आने वाला असर और इसमें कैसे आप, इसलिए सर अगर आपदा के कारण बहुत सारी जो क्षतियां होती है किसको होती है? मानव को होता है, समाज को होता है, तो इसलिए यह हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।